Hello, everyone. We are once again back, and I'll be your host for the day, Advocate Sara Chawla, Program Manager, Bhumika Trust, and Associate Legal Counsel in Bhumika Trust versus Union of India. And I'll be conversing with Advocate Jayan Singh Raghav, President, Bhumika Trust, and the main counsel in Bhumika Trust versus Union of India. We will be summing up the entire 3 year mandatory practice matter that has been going on and what has happened till now and what has been happening till now from February till that's July 2026. So, welcome, Advocate Jayan Singh, and let's just quickly sum up what we have been doing and what has been going on in the background all this time. So, let's start with February. That would be February 26th, if I'm not wrong. So thank you, Sarah, for once again welcoming me here and coming and addressing on this very important issue of the current time. So actually, the directions which were issued on 15th of January 2026 in this matter. So the directions were given to the national law schools and the national law universities across India, and the high courts were directed to communicate that order to these universities. Thereafter, what we see in the February, when the matter was listed before the special bench, all the review petitions which were pending on the judgment of the 20th of May in All India Judges Association. So all the review petitions got tagged with that matter. Up now, what happens after that? That we see that because of the tagging of the all the reviews, the matter gets quite highlighted, and the bench anyhow gave one more week to the remaining high courts to respond, because all the high courts on 26th of February didn't hand their responses on record. So now I'm just talking bit in Hindi also for our viewers. तो 15 जनवरी को सबको पता है कि जो डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि जितनी भी नेशनल लॉ स्कूल्स या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस इंडिया, वो अपने अपने सजेशंस या फीडबैक भेजेंगे कि 3 इयर्स रूल के ऊपर। और हाई कोर्ट को भी डायरेक्ट किया गया था जिसके अंतर्गत। और 26 फरवरी को हम ये देखते हैं कि काफी सारे हाई कोर्ट्स के रिस्पॉन्सेज हमें आए थे, बट लॉ स्कूल्स और नेशनल लॉ स्कूल्स के रिस्पॉन्सेज काफी कम थे। और एक हफ्ता और दिया गया था सारे नेशनल लॉ स्कूल्स को और हाई कोर्ट्स को टू रिस्पॉन्ड। सो ये तो फरवरी तक की बात है। ओवर टू यू सर। All right. So up till now, we're talking about the surveys that we've done and the record that was set before the court. So I've seen that being a practicing advocate in the Supreme Court, that the matter gets dragged. Hearings जो हमने बीच में देखी हैं, they were cancelled. Sometimes something happens and just it gets cancelled and it just drags on and on and on. And between all of that, from February till March, we've seen कि काफी सारी चीजें टैग भी हुई हैं इस मैटर के साथ. Talking about the intervening applications which IAs that were tagged. Let's talk about that कि क्या क्या इस मैटर के साथ टैग हुआ है और उसके बारे में हियरिंग जो नहीं हो पाई. लेट्स नॉट थिंक कि उसका कुछ होने नहीं वाला है बिकॉज दैट विल हैपन एनीवेज, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट एवर हैज बीन टैग्ड विद this matter. It's not public knowledge as of now. I don't think much of the people are aware of what has been happening behind the scenes, what we've been doing till now. So let's talk about that. तो आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वे आर प्रिज्यूमिंग, मतलब ये हम सोच सकते हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि जो भूमिका ट्रस्ट का एक सर्वे था वो हमने सर्कुलेट किया था अक्रॉस द कंट्री, और उसमें काफी लोगों ने उस फॉर्म्स को भरा था। एक जो कि स्पेसिफिक लॉ स्टूडेंट्स के लिए था जो करंटली पढ़ रहे हैं, और एक करंटली जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं और एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं।
तो उनके जो जो रिस्पॉन्सेज आए थे हमारे पास, काफी अच्छे नंबर में रिस्पॉन्सेज थे। और उस रिस्पॉन्सेज की हमने रिपोर्ट्स बना के इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स और रिपोर्ट्स अटैच करके उसमें सुप्रीम कोर्ट को दी थी। और ये एफिडेविट रिकॉर्ड्स पे आ गए थे 26 फरवरी को। पर हम क्या देखते हैं कि 13 मार्च को जब मैटर लिस्ट हुआ था दोबारा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कहना था कि विमेन और जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स, उनको बहुत इफेक्ट करेगा ये उसी एफिडेविट से आता है, क्योंकि हमारा जो डेटा था उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस हमने जेंडर के ऊपर भी दिया था। और लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और एक मिथ भी हो रहा है, एक सुपरस्टिशन भी हो रहा है कि जो इवेंचुअली जो मेन पिटिशन थी, दैट वाज ओनली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। बट एनी हाउ, वंस दीज डायरेक्शंस वर इशूड इन जनवरी, उसके बाद से जो स्कोप था पिटिशन का काफी बढ़ गया था। और मार्च के अंदर, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, 13 मार्च को जो जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो रिमार्क्स करे थे, वो हमारी बेसिस ऑफ द रिपोर्ट एंड एफिडेविट्स पे ही करा था। और उसके अलावा सारा जो आपने पूछा कि जो आईएएस थी, जो इंटरवीनर्स थे, जिन्होंने एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, तो वो अलग अलग ग्राउंड्स पे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, कुछ इंटरवीनर्स ऐसे हैं जो कि उनका ये कंसर्न है कि जो उनकी एज है उससे वो बार हो जाएंगे फॉर अपियरिंग इन द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एवरीवन हैज देयर ओन ग्रीवेंसेस इन वट एवर रिगार्ड दैट दे हैव। तो 13 मार्च को हम एक चीज और देखते हैं कि वी गॉट लॉट ऑफ कॉल्स एंड टेक्स्ट अबाउट कि भाई बिहार का एग्जामिनेशन जो है वो शेड्यूल्ड है मई में। और अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं लिया गया, तो जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। ये बिहार से बाहर के भी जो कैंडिडेट्स हैं जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले थे। तो जब 13 मार्च को जब हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी, और डायरेक्शंस यही थे उसके बाद 13 मार्च को, कि जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं और हाई कोर्ट्स हैं, वो जो लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स की थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की, उसको 30 अप्रैल तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एक्सटेंड कर दिया था। इन एडिशन टू द जो फ्रेश वैकेंसीज अगर कोई नोटिफाई करता है विद इन ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उनका एक्सटेंशन भी किया गया था। अब जहां तक बात जो हेयरिंग्स की हैं वो डिफर हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, देखिए उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस या जो भी रीजंस रहे हों, दैट वी आर आल्सो नॉट अवेयर अबाउट। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। एंड फाइनली वी मूव्ड एन एप्लीकेशन आल्सो इन मई, 15 मई के अराउंड। बट उस एप्लीकेशन से टेंटेटिव डेट बताई गई थी 22 मई 2026। बट हम क्या देखते हैं कि उस दिन भी मैटर हमारा लिस्ट नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाटसोएवर द रीजन वाज, बट इवेंचुअली वी गॉट द मैटर मेंशन बिफोर द ऑनरेबल बेंच। और हमें देखते हैं कि हमें वहां पे ये रिलीफ मिला कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर ऑल द जुडिशियल रिक्रूटमेंट विल रिमेन ओपन टिल एनी फर्दर ऑर्डर्स। तो एक्चुअली जो 13 मार्च का जो ऑर्डर था उसको एक्सटेंड कर दिया था टिल एनी फर्दर ऑर्डर्स। और व्हाट आई नो एज पर माय नॉलेज कि अभी तक किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या हाई कोर्ट ने उसके बाद कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है टिल डेट। और आज 27 जुलाई है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कल दोबारा से मैटर लिस्ट हुआ है। एंड वी मोस्टली feel that something or the other, whatever would happen for the betterment of the students, of the law students, या of the law fraternity at large. तो बाकी कल देखते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टुमारो व्हाट हैपेंस।
Okay, sir. Absolutely, we don't know anything that goes on behind the cancellations and all that. Obviously, we're not aware of that. We're just there to play our part, just to support the student community as much as we can from our side. Because what I've seen in the last few days कि इतनी सारी accusations भी लगी हैं organization के ऊपर भी, members के ऊपर भी, you're not doing anything. So just one message for them कि it's not just our role to run the administrative part of the courts because that goes on behind the scenes. वो जब hearing list करते हैं, वो hearing cancel करते हैं, और क्या चलता है procedurally क्या होता है, that's not in our hands. And about tomorrow भी we are quite hopeful कि हाँ list हो गया है matter, it's there. And अब वो कल क्या होता है even we are not aware of that part. बिकॉज पीपल आर कंसर्न कि उनकी एज बार हो रही है, फॉर विच उसके लिए भी एक आईए लग गई है, उसके लिए मेंशनिंग भी हो गई थी. फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी की भी आईए फाइल हुई हुई है, वो भी टैग हुई हुई है मैटर के साथ. सो इवन दैट्स नॉट अ कंसर्न एनी मोर फ्रॉम व्हाट आई बिलीव. एंड the candidates who are quite concerned about कि exams नहीं conduct हो पा रहे हैं. So, without removing or modifying the 3-year practice rule that's in question right now, I don't believe कि अगर examinations conduct इस time पे होते भी हैं without any clear decision from the court, तो उसका I don't think any that then again उसका जो benefit होगा that would be split. जिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो प्रैक्टिस कर चुके हैं बिटवीन देम. सो नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स कि कल हियरिंग में क्या होता है. एंड वी आर एब्सोल्युटली होपफुल कि कल हियरिंग हो जाए एज पर द लिस्टेड मैटर एंड वी गेट अ डिसीजन ऑफ इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट So at the community. end, Sara, I would Anything from just your say side, you that can go on. कि जो message की बात आपने करी है, so message to all those judicial aspirants is that only to have patience, क्योंकि patience एक बहुत बड़ा key to success होता है, और we all have to keep patience on this, and we are also keeping lot of patience and calmness also, क्योंकि किसी पे allegations लगा के या कुछ भी बोल के चिल्ला के is not the way to deal with the situation. And we're very much hopeful that the Honorable Bench, the Supreme Court of the Supreme Court, will hear us tomorrow. And probably we might be able to get some favorable orders of the elections. And I would just convey this message that to all the judicial aspirants that please be calm, be patient. देखिए, आपके एलिगेशंस लगाने से हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कम नहीं होने वाले हैं, या आपके एलिगेशंस और ब्लेम्स लगाने से हमारे जो एफर्ट्स हैं वो डबल नहीं होने वाले. If we say something that we are doing something, we are doing something. You have to understand this, that जो आपको कहा जा रहा है आप वो समझिए उस बात को, कि आपको अगर हमने कहा है, आपको हमने आश्वस्त किया है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो उस पर हम कुछ कर रहे हैं. अब ये जरूरी नहीं है कि हम आपको सारी चीजें जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं वो हम आपको बताएं, कब क्या होगा कैसे होगा ये हमारे ऊपर है. पर हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी बात को समझें और उस पर अमल करें, कि अगर हम आपसे कह रहे हैं पेशेंस रखिए तो पेशेंस रखिए, काम रहिए. और मैटर को हमने दोबारा से एक बार कोशिश किया था, मेंशन हुआ था 22 जुलाई को ही, और परसों ही ये डेट भी रिफ्लेक्ट हो गई है अ, आपके कॉस्ट के स्टेटस पे. और अभी आप देख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री की जो लिस्ट आई है कल के लिए, उसमें भी लिस्टेड है मैटर. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज बी पेशेंट, एंड प्लीज जितने भी कल के जो हियरिंग होगी, ऑनलाइन हियरिंग अगर आप देखना चाहें प्लीज इसी पे देखिए. एंड वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट, एंड दैट्स ऑल आई थिंक फ्रॉम माय एंड. All right. So thank you so much, our dear audience and the judicial aspirants who've been listening patiently, and I hope our words have soothed your concerns. Maybe not by much, but at least I would say that yes, we are behind you. We are supporting you in whatever way we can.
and we are not backing off from that. Thank you so much, everyone.